Okay. See, as I said, we will learn this module, pavement design. Okay. And under this module, this is our first lecture. What we'll have some idea what we will learn, and before that, what are the different components of the pavement. First, we learn what do we understand by pavement. Okay. And here in this module, what we will here it's given design, right? Design means what? We have to determine some parameters, the value of parameters. Okay. Say for example, in case of structural design, what we are designing, what we are calculating, we are basically calculating what are the dimension of a structure, right? For which it will sustain certain amount of uh, external load. Okay, internal as well as external load it will sustain. So in order to sustain that load without any failure, it may be bending, it may be deflection, whatever. Okay, so if the structure, what is the parameter, what should be the parameter, or what how we must design that parameter in such a way that it will not fail under certain application of load. Similarly, here also we will design different parameters of a pavement. Okay, as per the diagram you can see that our pavement is a layered structure. In structural engineering we are designing some structures, so we will consider in pavement design also that pavement is a structure, it's kind of a structure. Okay, where some amount of load is being applied throughout its design period. Okay, so for example, if we design some bridge, or there will be one design period, right? Similarly in this case also, in this pavement design also, we have to design this pavement layers. Okay, we have to design, or we have to calculate this thickness. See here, these are the thickness. What is the thickness of these pavement layers? We have to design that only. We have to calculate that thickness only, H value. Okay. First of all, what is the thickness of individual layer, and what is the total thickness of the pavement? Okay. We will discuss every layers. What are these? See, there are different types of the layers. Superimposed layer, we can say it is the superimposed layers. Okay. What is the purpose of each layer? What is the composition of each layer? Okay, so we will learn about this also in this lecture. So basically pavement design deals with the design of the thickness of the pavement. Okay, now it may be Yes, total thickness of the pavement, or it may be individual pavement thickness. So there are several methods that we will learn. It may be empirical method, theoretical method, or experimental based methods also. Okay, so there are different methods. And मैम yes, स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, हिमांशु नमस्कार। okay. ओके, अच्छा फोन आ गया, चलो तो निकल भी गया। अच्छा, so we will, in this module we will design this thickness only. Okay, now then why we are learning different why we are dealing with this introduction, why we are not going to the direct design method. Okay, first we will go slowly, step by step. We have to understand the basics of this pavement. Okay, what is the analysis, how we will analyze this pavement. Before that we have to understand the components of the pavement. Components means what are the different layers it is composed of. Okay, so we will learn this Yes, only. ma'am. And also we will learn what are the different types of the pavement. Basically here the two important types of pavement we will design is your flexible pavement and rigid pavement. And you must have clear idea about this, what is the difference among these two. Okay, what is the difference between this flexible and rigid pavement also. Now see, today we will learn definition, function of pavement. Okay, what are the different where we can apply, where we can facilities where pavement are provided. Okay, where we can provide pavement structure and its components,
pavement types and components of pavement layers. Okay, both are the same. If we know this one, then we can automatically easily we can conclude this also. What are the different components of the pavement? Okay, now see, as I said, it is the superimposed layers. Pavement is not only one layer. Okay, it is not only one structure, it is not only one layered structure, it is multi-layered structure. Okay, which are superimposed, that means which are placed one above the other. Okay, so see here, first is what? Compacted subgrade. As I said, this is your foundation. Okay, foundation of the pavement structure. Now above that there will be some other layers. So suppose base course, sub base course, then base course, binder and surface course. Okay. Oh, hello. हेलो, यस मैम। सुनाई दे रहा है? करंट चला गया यहाँ पे। वो नहीं सुना रहा। Okay. So it is built over the prepared soil subgrade. Please remember that first layer which is to be constructed in the pavement is your subgrade. Okay, subgrade is চলছে আছো তো সবাই? यस मैम। Okay. Yes, ma'am. Okay. So first layer, top, this is first layer. It doesn't mean that this is the topmost layer. This is the bottommost layer. Okay, compacted subgrade. Okay, so the total pavement is what? The total layers, composition of the total layers which is placed over the subgrade is known as pavement. Just remember that pavement is not this total layer from surface course to subgrade. Okay, मतलब कि तुम यहाँ पे देखो कितना सारा लेयर, 1 2 3 4 5 लेयर है. सो यहाँ पे टोटल 5 लेयर को मिलाकर हम पेवमेंट नहीं कह सकते. ओके, पेवमेंट इज व्हाट? द लेयर्स व्हिच इज लेड ओवर द सबग्रेड, मतलब कि टॉप सरफेस से लेकर ये सब बेस कोर्स की एंडिंग तक, दैट इज द पेवमेंट. प्लीज रिमेंबर. ओके, द लेयर्स अबव सबग्रेड इज योर पेवमेंट. ओके, सबग्रेड को हम अलग से कंसीडर करेंगे. पेवमेंट इज व्हाट? पेवमेंट इज ऑल द लेयर्स व्हिच आर प्लेस्ड अबव द सबग्रेड. ओके, एंड मेन यहाँ पे व्हाट इज द मेन पर्पस? एज आई सेड, स्ट्रक्चर का मेन पर्पस क्या है? हाउ वी आर डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर? वी आर डिजाइनिंग स्ट्रक्चर, we are imposing some loads. Okay, and we will check whether that parameters is suitable for or sustaining such kind of loads or not. Okay, मतलब कि एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हो पा रहा। अच्छा, वेट. ओके, तो पेवमेंट के ऊपर भी वैसा कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. मतलब कुछ हम ऐसे क्यों, रास्ता को क्यों ऐसे बना रहे हैं? पहले व्हाट हम लोग फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन में पढ़े थे, पहले कैसा था? इट वाज ओनली द अर्दन रोड, राइट? फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता स्टार्ट गया. क्यों? बिकॉज वहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल्स, मतलब ट्रैफिक लोड बढ़ने लगा है. अब ट्रैफिक लोड बढ़ेगा तो जो अर्दन रोड है इट विल नॉट सस्टेन, मतलब वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, राइट? फेलियर, पॉटहोल्स, ये सब स्टार्ट हो जाएगा. सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ऑल दिस डिस्ट्रेसेस और फेलियर्स, व्हाट वी हैव डिजाइन, वी आर डिजाइनिंग पेवमेंट इनटू डिफरेंट लेयर्स. ठीक है, जिससे कि टॉप लेयर से एकदम ग्राउंड, एकदम सबग्रेड तक वो क्या बोलते हैं, फोर्स इट विल स्प्रेड ऑन, मतलब वो स्प्रेड होता जाए. और लास्ट में जो सबग्रेड है उसके नीचे नेचुरल सॉइल है, अल्टीमेटली नेचुरल सॉइल में जाना है लोड को. ठीक है, ऊपर से लोड को नेचुरल सॉइल में जाना है. तो जब नेचुरल सॉइल में लोड आएगा और टॉप में जो लोड आएगा, विच विल बी ग्रेटर? फर्स्ट टेल मी. सपोज हियर इज वन व्हील लोड. ओके, तो टॉप सरफेस विल फेस हायर लोड और योर बॉटम सरफेस, इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर आएगा? टॉप के ऊपर या कि नीचे के ऊपर? एकदम नीचे वाला जो भी है नेचुरल सॉइल के ऊपर. ऑब्वियसली टॉप में ज्यादा लोड आएगा, राइट? यस, क्योंकि टॉप में डायरेक्ट लोड कांटेक्ट कर रहा है तो वहां पे ज्यादा लोड आएगा. अब ये लोड आस्ते आस्ते क्या हो जाएगा? इट विल स्प्रेड इन अ सर्टेन, एक स्ट्रेट लाइन होता है, इंक्लाइन लाइन में वो स्प्रेड होता जाएगा. तो देखना ये स्प्रेड की वजह से, देखो यहाँ पे है, सी
ये है टॉप लेयर में, देखो ये इसका इतना ही कॉन्टैक्ट एरिया है, इतना ही कॉन्टैक्ट एरिया है, तो लोड पर यूनिट एरिया, यहाँ पे लोड इज फिक्स्ड, एरिया इज लेस, सो प्रेशर विल बी मोर, राइट। प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, लोड पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पे जो एरिया पे लोड आ रहा है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, तो दैट इज योर प्रेशर इज ह्यूज। अब जैसे जैसे ये लोड नीचे की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, देखो इट विल स्प्रेड एट 45 एंगल में, ठीक है, ऐसे ऐसे स्प्रेड होता होता जाएगा, अल्टीमेटली यहाँ पे जब आएगा सबग्रेड के नीचे, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, देखो स्प्रेड होके इतना ज्यादा हो जाएगा। सो लोड इज सेम, सो लोड पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, अब नीचे का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर घट मतलब बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली तुम्हारा प्रेशर क्या हो जाएगा, एरिया इज इंक्रीजिंग, लोड इज कांस्टेंट, देन प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा ना घटेगा। प्रेशर इज लोड पर यूनिट, लोड बाय एरिया, एरिया के साथ क्या है प्रेशर, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, ठीक है। तो यही मेन फंडा है कि हमको ये पेवमेंट को क्यों वी आर डिजाइनिंग इट एज अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि वो अगर एक लेयर ही करेंगे तो देखो एक लेयर का ही तुम्हारा बहुत ज्यादा प्रेशर आ जा रहा है, तो वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, वहाँ पे क्रैक्स डेवलप हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए एक ऐसा डिजाइन किया कि वी आर डिजाइनिंग इट एज अ मल्टी लेयर, तो ये क्या होगा, स्लोली स्लोली ये स्प्रेड होता होता जाके अल्टीमेटली तुम्हारा जो ग्राउंड में जाएगा, लोड कहाँ से जाता है तुम्हारा स्ट्रक्चर से भी, तो अल्टीमेटली फुटिंग में होकर सॉइल में जाता है, राइट। तो यहाँ पे भी सॉइल में जाएगा, तो सॉइल में जो लोड आ रहा है, आई मीन जो प्रेशर आ रहा है, इट इज रिड्यूस्ड, मतलब वेरी लेस कंपेयर टू द टॉप सरफेस। फॉर दैट रीजन ओनली वी आर डिजाइनिंग इट एज अ मल्टी लेयर, जिससे कि ये स्प्रेड होता 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 जाए। तो ये इसका मेन फंडा है लेयर स्ट्रक्चर का, ओके। अब देखो इतना सारा व्हीकल्स आ रहा है, तो एक दिन नहीं आएगा, सो वी हैव टू डिजाइन दिस लेयर फॉर हाउ मेनी इयर्स, इट डिपेंड्स कि कौन सा टाइप का पेवमेंट हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, वेदर इट इज फ्लेक्सिबल और इट इज रिजिड, राइट। अगर फ्लेक्सिबल हुआ तो थोड़ा कम ईयर्स होगा, जैसे 15 to 20 ईयर्स, ठीक है। और रिजिड पेवमेंट मतलब, रिजिड का मतलब क्या है कि टॉप सरफेस में सीमेंट कंक्रीट रहेगा। अभी जो तो जितना भी तुम लोग मैक्सिमम जो भी देख रहे हो रोड सरफेस, दैट इज बिटुमिनस कंक्रीट, मतलब कि वो है फ्लेक्सिबल पेवमेंट, ठीक है। तो रिजिड में क्या हो जाएगा, ये टॉप सरफेस ही थोड़ा चेंज हो जाएगा, ओके। वहाँ पे हम लोग स्लैब बिठा देंगे, तो थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, राइट। उसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा इसका रिजिड पेवमेंट का लाइफ थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। So this is the main function of pavement is what, to transfer load, or to we can say it is to distribute the applied vehicular loads to the subgrade। distribute मतलब फैला देना, ठीक है, उसको पॉइंट लोड से एकदम क्या बोलते हैं, पूरा एरियल टाइप में फैला दिया है, ठीक है, जिससे तुम्हारा प्रेशर कम होता होता जा रहा है। अल्टीमेटली जो सॉइल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा दैट विल बी वेरी लेस, जितना कि डायरेक्ट टॉप सरफेस में पड़ रहा है उससे, ओके। क्लियर एवरीवन? यस मैम। ओके यस मैम। ओके, नाउ से ये थोड़ा मतलब तुम लोग सिर्फ रास्ते पेवमेंट कहाँ पे सुनाई देता है, पेवमेंट वी विल सी ओनली इन रोडवेज, राइट। यही तुम लोग का कॉन्सेप्ट अभी हो, मतलब अभी तक का कॉन्सेप्ट यही है कि मतलब रोडवेज में ये हम लोग पेवमेंट डिजाइन करते हैं, पेवमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। देयर आर मेनी अदर फैसिलिटीज ऑल्सो, जैसे कि ये है तुम्हारा एयरपोर्ट में जब होता है, एयरपोर्ट पेवमेंट मेनली कहाँ पे होता है, रनवे, मतलब जहाँ पे तुम्हारा दैट पोर्शन ऑफ द एयरपोर्ट जहाँ से तुम्हारा प्लेन टेक ऑफ करता है या तुम्हारा प्लेन लैंडिंग करता है, तो वहाँ पे भी तो देखना है, वहाँ पे क्या होता है, एक पेवमेंट ही होता है, राइट। तो वहाँ पे भी ये यूज करते हैं हम लोग। दूसरा क्या है, यहाँ पे बस टर्मिनल, यार्ड्स, हॉल रोड। हॉल रोड मतलब कि देखो ये है कंस्ट्रक्शन, मतलब जहाँ से तुम लोग हॉल करके लाते हो मटेरियल्स, खदान से जहाँ से लेकर आते हैं ना, ये सब एग्रीगेट्स, ये सब ब्लास्ट करके, ठीक है। तो वहाँ पे भी तो व्हीकल्स को जाना पड़ेगा जो ये कैरी कर रहा है, राइट। सो इक्विपमेंट्स, ये जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स जो भी है उनको जाने के ट्रैवल करने के लिए वी हैव टू कंस्ट्रक्ट रोड ऑल्सो, मतलब वहाँ पे भी पेवमेंट डिजाइन करना पड़ेगा, कि ऐसे नहीं कि हम ऐसे पेवमेंट बिठा दिया तो क्या हो जाएगा, ये जो हेवी लोडेड वाला ट्रक क्या हो जाएगा, आस्ते आस्ते धंसना स्टार्ट करेगा अगर इट इज नॉट डिजाइन इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है। दूसरा तो है ये हाईवे, हम लोग तो हाईवेज में देखते हैं, हाईवेज में भी मतलब रोडवे, ठीक है, इट में भी नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, ये वाला देखो दिस इज लो वॉल्यूम रोड, ठीक है। मतलब ऐसा टोल बूथ है, टोल बूथ में अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो वहां पे तुमको रिजिड पेवमेंट दिखाई देगा, ओके, मतलब कि स्लैब
ये वाला क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, देखने से क्या लग रहा है डिफरेंस इसमें और इसमें? दिस इज फ्लेक्सिबल, दिस इज रिजिड। डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है पर्सपेक्शन से तुम लोग को देख कर क्या लग रहा है डिफरेंस? एनीवन? इन दोनों में डिफरेंस कुछ दिखाई दे रहा है तुम लोग को देखने से? कुहेली, हेलो, Yes, ma'am. डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है कुछ? ये फ्लेक्सिबल, ये है फ्लेक्सिबल, ये है रिजिड। देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक जॉइंट दिखाई दे रहा है, ये वाला देखो, दिस जॉइंट, ठीक है, ये जॉइंट, और ये वाला जॉइंट दिखाई दे रहा है, देखो। ओके, अगर ये व्हीकल इस डायरेक्शन से आ रहा है तो ये जो लंबा जॉइंट है, जो इसको मतलब गैप है, ऑब्वियसली यहाँ पे जॉइंट है मतलब कुछ गैप है, राइट? तो स्लैब्स को ऐसे ऐसे करके बिठा दिया है तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे तो गैप रहेगा, तो गैप जहाँ पे वहाँ पे जॉइंट रहेगा। So now this joint is what? This is your longitudinal joint because vehicle is coming in longitudinal direction, तो उसका parallel जो joint है उसको बोलते हैं longitudinal joint। और ये वाला joint क्या है? This is transverse to the direction of the vehicle, मतलब ऐसे जा रहा है, उसका perpendicular में ये joint है, right? That is a transverse joint। और ये बाद में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। longitudinal joint, transverse joint। तो दिखाई दे, देखो यहाँ पे क्या है, in your flexible pavement, this is what? This is a continuous structure, continuous layer structure, continuous। यहाँ पे कोई joints तुमको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये continuous है, right? और यहाँ पे क्या है, हम बोले थे टॉप सरफेस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिटुमिन है टॉप सरफेस में, इसमें क्या है, इसमें स्लैब्स बिठा दिया है। सो दिस इज द डिसकंटिन्यूअस स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब बहुत सारा स्लैब्स को ज्वाइंट कर करके एक रास्ता बनाया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस कि ये कंटिन्यूअस होगा और ये डिसकंटिन्यूअस है, ओके। सो बट ये दोनों पेवमेंट ही है। अब इन दोनों का ये डिजाइन वैसा ही है कि थिकनेस ऑफ दिस स्लैब, मतलब ये स्लैब का थिकनेस कितना होना चाहिए, ये हमको डिजाइन करना है इन फ्यूचर। होप आई थिंक यू आर क्लियर। नाउ सी, अब इसको अगर हम पूरा डायग्रामेटिकली मतलब 3D व्यू में अगर देखेंगे तो कैसा लगता है। सो इट लुक्स लाइक दिस, पेवमेंट ऊपर से ये सिंपल ये वाला दिखाई दे रहा है, ओके, बट इसके नीचे देखो बहुत सारा लेयर्स है, ओके, मतलब योर व्हीकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ऐसे डायरेक्शन में आना जाना कर रहा है। तो उसको क्रॉस सेक्शन वाइज अगर हम काटेंगे, एंड इफ वी लुक फ्रॉम दिस क्रॉस सेक्शनल व्यू, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ अ, इसको हम फ्लेक्सिबल पेवमेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा क्या है, मतलब बिटुमिन टाइप का एक है, ठीक है। सो फर्स्ट में क्या आता है, हम लोग बोले थे पेवमेंट इज द लेयर अबव द सबग्रेड, तो सबग्रेड को हम पेवमेंट में कंसीडर नहीं करते हैं, ओके। तो पेवमेंट डिजाइन मतलब है टोटल लेयर्स का डिजाइन करेंगे, थिकनेस डिजाइन करेंगे विच इज अबव द सबग्रेड। ये सबसे नीचे देखो, दिस इज द सबग्रेड, तो हम सबसे पहले क्या आया, सब बेस, ठीक है। सो सब बेस कोर्स ये है, बेस कोर्स ये वाला है, उसके ऊपर बेस कोर्स, सबसे नीचे सबग्रेड, ओके। और पेवमेंट के अंदर में क्या क्या आएगा, सबसे नीचे आएगा सब बेस, फिर बेस, सब बेस मतलब बेस के नीचे है इसलिए सब बेस, फिर बेस है, फिर तुम्हारा आएगा बाइंडर कोर्स, ठीक है, फिर आएगा तुम्हारा वेयरिंग कोर्स और सरफेस कोर्स। इसको वेयरिंग कोर्स भी, सरफेस क्यों, ऊपर टॉप सरफेस में है, और वेयरिंग क्यों, बिकॉज क्यों बोलो तो वेयरिंग क्यों बोलते हैं इसको, एनी आइडिया वेयरिंग का मतलब क्या है? तो बिटुमिन दिया होता है इसलिए? नहीं नहीं, वियरिंग, वियर टियर सुना दिया कभी, वियर टियर ये टर्म? क्योंकि सबसे ज्यादा लोड मतलब सबसे ज्यादा वियर टियर कौन सा लेयर में होगा, ऑब्वियसली इन द टॉप मोस्ट लेयर, क्योंकि वहीं पर तुम्हारा ट्रैफिक इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पेवमेंट, राइट? बाकी लेयर्स के साथ तो पेवमेंट डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, ट्रैफिक डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, इसी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है। इसी में जितना वियर टियर फ्रिक्शन ये सब होता है, इसलिए इसको वियरिंग फोर्स भी बोलते हैं हम लोग, ओके। अब ये दोनों को फॉर इन दिस केस, ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर फ्लेक्सिबल पेवमेंट, ओके। इन दिस केस ये दोनों को मिलाकर ही हम लोग बोल सकते हैं टॉप कोर्स या टॉप लेयर, ओके। एंड ऑल दीज लेयर्स आर प्लेस्ड ऑन दिस सबग्रेड, ओके। ये है तुम्हारा मेन फंडा, ओके। अल्टीमेटली इन लेयर्स का काम क्या है, फर्स्ट टू ट्रांसफर एंड डिस्ट्रीब्यूट लोड फ्रॉम टॉप लेयर टू द बॉटम्स लेयर्स, ओके। इसका मेन फंक्शन यही है, ठीक है। अब ईच लेयर का फिर अलग अलग फंक्शन रहेगा, जैसे हम बोलेंगे इन
लेटर स्लाइड्स में। फर्स्ट हम बोले थे क्या, सबग्रेड। सबग्रेड ये कहाँ से कहाँ पे रहेगा, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन पेवमेंट, प्लीज रिमेंबर पेवमेंट लेयर्स में सबग्रेड नहीं आता है। पेवमेंट लेयर्स उसी को बोलते हैं जो सबग्रेड के ऊपर से होता है, लेकिन वी शुड अंडरस्टैंड द सबग्रेड मतलब किस चीज से बनता है, क्यों बनता है, ये भी हमको जानना जरूरी है। ओके सो देखो सबग्रेड इज व्हाट, दिस इज द टॉप सरफेस ऑफ द रोड बेड सॉइल। अब टॉप सरफेस मतलब एकदम ऊपर से नहीं, नीचे से हम बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब कि एकदम जो रोड बेड है, नीचे जो जमीन तुम्हारा नेचुरल सॉइल है, उसमें जो टॉप मोस्ट उसका जो टॉप पोर्शन है दैट इज द सबग्रेड। ओके द टॉप सरफेस ऑफ द रोड बेड सॉइल अपॉन व्हिच द पेवमेंट स्ट्रक्चर्स एंड शोल्डर्स आर कंस्ट्रक्टेड। ओके अब लेयर्स भी है, देखो इसमें लेयर्स भी है एंड दिस इज द शोल्डर, ये वाला पोर्शन इसको हम बोलते हैं शोल्डर, ठीक है, और कैरेज भी ये वाला ब्लैक है जहाँ पे गाड़ी कैरी करेंगे, और दिस इज द शोल्डर, तो इसको सपोर्ट कर रहा है कौन, सबग्रेड, ठीक है। फंक्शन क्या है, टू रिसीव स्ट्रेसेस फ्रॉम द अबव लेयर्स, मतलब कि टॉप लेयर से रिसीव करना, क्या रिसीव करना तुम्हारा, स्ट्रेसेस। स्ट्रेसेस का मतलब प्रेशर भी हम लोग बोल सकते हैं, ओके, लेकिन यहाँ पे प्रेशर नहीं बोलेंगे, यहाँ पे स्ट्रेस हम लोग बोलेंगे। ओके सो रिसीव स्ट्रेसेस फ्रॉम द लेयर्स अबव। इसके अच्छा इसके ऊपर कौन सा लेयर होगा, एनीवन, सबग्रेड के ऊपर एकदम नीचे वाला है तुम्हारा सबग्रेड, सबग्रेड के ऊपर कौन सा आएगा, बेस। नहीं नहीं नहीं, बेस, सब बेस, सब बेस, फिर बेस, फिर टॉप कोर्स। ओके टॉप में दो Yes, भाग ma'am. में हम डिवाइड कर सकते हैं। अब मेन इसको क्या करना है हमको, ये देखो दिस इज द नेचुरल सॉइल, जो भी है तुम लोग का बाहर से एक्सकवेट करके सॉइल सैंड जो भी है लेकर हम डंप कर देंगे, ठीक है, सर्टेन थिकनेस तक। अब ऐसे ही अंदाज में नहीं, इसका थिकनेस हम लोग को जो डिजाइन किया हो उस हिसाब से हम एक लेयर बिठा देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उसको हमको कंपैक्शन करना है, ठीक है, आर्टिफिशियली कंपैक्ट करना है, ठीक है। तो कंपैक्ट करेंगे किससे, देखो रोलर से, ठीक है। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रोलर्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ द सॉइल दैट वी आर यूजिंग। ओके देखो यहाँ पे ऐसा टाइप का भी रोलर है, इसको बोलते हैं सीप फुट रोलर। ये है तुम्हारा मेटल वाला जो भी है सिलेंडर रोलर है, ठीक है, मतलब स्मूथ रोलर जिसको बोलते हैं, और भी न्यूमेटिक टाइप का भी होता है, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द सॉइल दैट वी आर यूजिंग, ठीक, किस टाइप के सॉइल में कैसा हम लोग ये रोलर यूज कर सकते हैं। रोलर मतलब ये पूरा इसको एक फोर्स देकर इसको कंपैक्ट कर रहा है एट द सर्टेन थिकनेस, जो भी डिजाइन थिकनेस है उस थिकनेस में हम इसको कंपैक्शन करेंगे। ओके सो दिस इज द सबग्रेड, और ये वाला सबसे नीचे होता है। ओके नाउ एज आई सेड सब तुम्हारा सबग्रेड हो गया, अब उसके ऊपर क्या बिठाएंगे हम, सबबेस। ओके सो सबबेस इज व्हाट, इज द लेयर ऑफ स्पेसिफाइड और सिलेक्टेड मटेरियल्स, मतलब कि हम डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द ट्रैफिक, मतलब ये हेवी ट्रैफिक रीजन है या हेवी मतलब इसमें बहुत सारा ट्रैफिक जाएगा या बहुत सारा व्हीकल इसके ऊपर से चढ़ेगा, या मतलब लो ट्रैफिक है या कैसा टाइप का है, ठीक है, या मीडियम ट्रैफिक रीजन है, उस हिसाब से हम लोग का क्या बोलते हैं यहाँ पे एग्रीगेट सिलेक्ट करेंगे, उस हिसाब से हमको ये थिकनेस भी सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसको भी वैसे यहाँ पे एग्रीगेट्स लेकर आएंगे पूरा, सिर्फ अब ये आएगा कि इसके सिर्फ एग्रीगेट से ये बनता है ना किस चीज से बनता है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, किस किस चीज से ये सबबेस जनरली बनाते हैं हम लोग। ओके तो अब ये किसके ऊपर आता है, इट इज प्लेस्ड ओवर द सबग्रेड, सिर्फ डिजाइन थिकनेस। अब ये थिकनेस भी हमको डिजाइन करके हम लोग, ये क्या है, आफ्टर डिजाइन प्लानिंग एंड डिजाइन के बाद हम लोग साइट में जाके ये थिकनेस लोड करके इसका थिकनेस कॉम्पैक्ट करके ये थिकनेस हम मतलब वहाँ प्रैक्टिकली implement कर रहे हैं। ओके बट बिफोर दैट वी हैव टू डिजाइन दिस थिकनेस। नाउ प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द बेस को, ऑब्वियसली इसके ऊपर बेस होगा तो उसको एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने के लिए इसका मेन फंक्शन है, ठीक है। ऑल्सो टू इम्प्रूव ड्रेनेज, ड्रेनेज क्यों, हम बोले थे पेवमेंट के नीचे सबसे नीचे क्या है, पेवमेंट लेयर के सबसे नीचे क्या है, सबग्रेड है, विच इज नथिंग बट द नेचुरल सॉइल कंपैक्टेड आर्टिफिशियली। अगर जहाँ पे सॉइल है और वहाँ पे तुम पानी दे दोगे तो अल्टीमेटली उसका क्या हो जाएगा, वो उसको कॉम्पैक्ट करके मतलब सॉलिडिफाई करके हम उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, एक लेयर प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि वो ऊपर का लेयर का लोड कैरी कर सके। अब तुम वो लेयर में पानी छिड़क दो या पानी वहाँ पे मतलब वहाँ पे डाल दो तो क्या हो जाएगा, इट विल स्टार्ट टू लूज,
तो जो भी उसका कंपैक्शन है वो लूज हो जाएगा, तो उसका स्ट्रेंथ इट विल स्टार्ट टू रिड्यूस। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ऊपर का जितना भी लेयर था वो लोड ले नहीं पाएगा तब, ठीक है। तो ले नहीं पाएगा तो क्या होगा, सब धंस जाएगा। इसीलिए फॉर दैट रीजन ओनली हमको यहाँ पे ड्रेनेज का भी कंसिडरेशन करना है। और जो पेवमेंट में ड्रेनेज का कंसिडरेशन सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन करता है, हाँ, किसकी वजह से ये ड्रेनेज पॉसिबल हो सकता है इन केस ऑफ पेवमेंट, ज्योमेट्रिक डिजाइन में पढ़े हो तुम। व्हाट इज दैट एलिमेंट, उसका नाम क्या है, जो तुम्हारा ये जो भी ड्रेनेज आएगा उसको हम ड्रेन आउट कर सकेंगे। तो उसके लिए हमको पेवमेंट में क्या देना पड़ता है, कौन सा ज्योमेट्रिक एलिमेंट हमको देना पड़ता है, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, भूल गए, कैम्बर, कैम्बर याद था? Yes, ma'am. कैम्बर, ठीक है। तो हम लोग वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट ये जो भी बेस कोर सब बेस है, इन लोग को भी एक सर्टेन क्रॉस स्लोप में हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि पानी अगर बाय चांस टॉप सरफेस में तो कैम्बर है उससे तो जाना चाहिए, लेकिन बाय चांस क्रैक्स थ्रू क्रैक्स अगर वो नीचे की तरफ आएगा भी तो वो इन लेयर्स में भी एक क्रॉस स्लोप होता है, तो इसकी वजह से वो लोग बह के यहाँ पे जो ड्रेन है उसमें चला जाएगा, ठीक है। सो इम्प्रूव ड्रेनेज ऑल्सो एज वेल एज क्या है कि ये जो नेचुरल सॉइल को कंपैक्ट करके इसके नीचे क्या है, सबग्रेड है, ठीक है। अगर सबग्रेड इट इज मेड अप ऑफ नेचुरल सॉइल, मतलब सैंड क्ले इससे बनता है, ठीक है। तो क्या करेंगे अब, अगर बाई चांस उसका जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है वो अगर ऊपर की तरफ चला जाए, इंट्रूड कर जाए, तो उसको भी प्रिवेंट करता कौन है, सब बेस। तो इसका मेन काम है टू प्रोवाइड ड्रेनेज, इम्प्रूव ड्रेनेज, प्रोवाइड सपोर्ट टू द अबव लेयर्स, मतलब कि बेस कोर्स को सपोर्ट देता है, और नीचे से तुम्हारा जो भी सॉइल पार्टिकल्स है, फाइन पार्टिकल्स है, उसको इंक्लूड होने से रोकता है। सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ सब बेस। नाउ ये वाला टर्म तुम लोग को बार बार सुनाई देगा, ग्रैनुलर सब बेस, ग्रैनुलर सब बेस, मतलब कि ये जो ग्रैनुलर, इसको बोलते हैं ग्रैनुलर सब बेस, ठीक है। मतलब इससे जो बनता है मटेरियल्स उसको हम लोग बोलते हैं ग्रैनुलर सब बेस। नाउ व्हाट आर द मटेरियल्स दैट आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग दिस सब बेस, मोरम, तुम लोग पढ़े होंगे, लैटरल रेड लैटरल सॉइल, ठीक है, मोरम जिसको बोलते हैं, नेचुरल सैंड, क्रस्ट ग्रेवल, क्रस्ट स्टोन, इन सब से, या क्रस्ट ब्रिक्स, इन सब से, इन सबको ऐसे ले करके फिर कॉम्पैक्ट देके हमको वो तुम्हारा सब बेस कोर्स को बनाना पड़ता है। ओके, सो दिस आर द मटेरियल्स दैट आर यूज्ड। और ये सब तो स्पेसिफिकेशंस है कि कितना थिकनेस होना चाहिए, ये सब का ये जो साइज है, एग्रीगेट का जो साइज है कितना होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब इससे छोटा हम लोग ऊपर यूज करेंगे, इससे बड़ा हम कहाँ पे यूज करेंगे, ये सब है, ठीक है। तो इसका साइज भी मैटर करता है, फॉर विच देयर इज सम स्पेसिफिकेशन गिवन इन दिस नोट। ओके, नाउ थिकनेस शुड नॉट एक्सीड 150 mm, मतलब 15 सेंटीमीटर से ज्यादा थिकनेस हमको देना ही नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम इज 150। अब आता है बेस कोर्स, मतलब इसके ऊपर जो था, ठीक है। तो इसका भी हम लोग बोले हैं, इट इज ऑल्सो द लेयर ऑफ स्पेसिफाइड और सिलेक्टेड मटेरियल ऑफ डिजाइन थिकनेस, इसका भी डिजाइन थिकनेस डिजाइन करना पड़ता है हमको, विच इज प्लेस्ड अबव द सब बेस। ओके, अब ये बनता कैसे है, दोनों का सेम ही है, लेकिन इस ये वाला थोड़ा ज्यादा क्या बोलते हैं, एज वी गो अप प्रॉपर्टी शुड व्हाट, इंक्रीज और डिक्रीज। जो भी मटेरियल्स यूज कर रहे हैं उसका प्रॉपर्टी इंक्रीज होना चाहिए कि डिक्रीज होना चाहिए, जैसे जैसे हम ऊपर की लेयर की तरफ जाएंगे, डिक्रीज, डिक्रीज। सबसे ज्यादा फोर्स प्रेशर कहाँ पे पड़ता है, ऊपर में या नीचे, Top surface. टॉप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना नीचे, टॉप को तो ज्यादा जैसे जैसे strong. आप ऊपर की तरफ जाएंगे इसका प्रॉपर्टी भी उतना ही अच्छा होता जाएगा। ओके, तो ये बनता कैसे है, इट इज बाय मैकेनिकल इंटरलॉक्ड फिलिंग वॉइड्स विद स्क्रीनिंग मटेरियल। देखो यहाँ पे एक होता है कोर्स एग्रीगेट लो, कोर्स एग्रीगेट लो, ठीक है, दूसरा है फाइन एग्रीगेट्स लो, फाइन एग्रीगेट्स आर द फिलर मटेरियल। कोर्स एग्रीगेट को ही तुम अगर सिर्फ मतलब बड़ा बड़ा पत्थर को ही तुम अगर ऐसे रख के इसके ऊपर रोलर चपा दोगे तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी सम वॉइड्स, वॉइड्स होने से क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, पानी भी पेनिट्रेट हो सकता है, उसका स्ट्रेंथ भी अच्छी तरह से नहीं होता है। तो क्या करना है, इसको हमको फिल कर देना है, राइट। जो भी वॉइड होगा उसको फिल करेंगे, जैसे ये सबसे छोटा छोटा तुम्हारा मतलब सैंड क्ले जो भी है उससे हम फिल करेंगे, या स्क्रीन इसको भी बोलते हैं, स्क्रीन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है, नाउ
what we will do, we will apply some binding materials. अब यहाँ पे बाइंडिंग का मतलब तुम्हारा क्या आता है, स्टोन डस्ट, ठीक है। तो कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट में सैंड, क्ले, ये सब होगा तुम्हारा स्क्रीनिंग मटेरियल्स या फिलर्स, ठीक है। और बाइंडिंग मटेरियल्स यहाँ पे क्या है, स्टोन डस्ट। तीनों चीज को मिला के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ले करेंगे, प्लेस करेंगे, फिर कॉम्पैक्ट देंगे, ठीक है। तो दिस इज योर बेस कोर्स। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द मेथड कि कैसे हम ये बेस कोर्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द बेस कोर्स, ओके। दैट इज योर सॉरी ये वाला, अच्छा इसका मैं पहले हम बोल देते हैं वो क्या है। दो टाइप का, एक होता है तुम लोग शायद सुने हो, वाटर बाउंड मैकाडम, ठीक है। दूसरा क्या है तुम्हारा वेट मिक्स मैकाडम, ये हम बोलेंगे, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन द मेथड हाउ वी आर प्लेसिंग, इसको कैसे प्लेस कर रहे हैं, उसके ऊपर तुम्हारा एक है वाटर बाउंड मैकाडम WBM और दूसरा है वेट मिक्स मैकाडम, वो हम बाद में आएंगे क्या है, ओके। अब इसका आते हैं फंक्शन में। फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड एडिशनल लोड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ऑब्वियसली लेयर्स जितना ज्यादा दोगे उतना ही अच्छा है ना तुम्हारा, और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता होता जाएगा। तो मेन यही है कि टॉप सरफेस से नीचे की तरफ लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, और वेयरिंग फोर्स या बाइंडर फोर्स से नीचे सब बेस या सब ग्रेड को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है कौन, बेस कोर्स। इसका मेन फंक्शन ये है। दूसरा क्या है, कंट्रीब्यूट टू द सब सरफेस ड्रेनेज। देखो यहाँ से बारिश आया, ये कैम्बर है थोड़ा, ठीक है। कैम्बर मतलब क्रॉस स्लोप है, तो क्या हो रहा है, क्रॉस स्लोप की वजह से बारिश एक आके यहाँ पे आउटर ड्रेन में तो चला ही जा रहा है। अब सरफेस ड्रेनेज भी कभी कभी दे देते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से बाई चांस अगर इफ वाटर पेनिट्रेट्स इनसाइड द लेयर्स, मतलब बीनीथ द लेयर्स अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस सरफेस कोर्स का भी एक देखो बेस कोर्स का भी एक क्रॉस स्लोप है, उसकी वजह से भी ये वाला भी फ्लो होके होके सब सरफेस में ड्रेन में चला जाएगा, ओके। सो मेन फंक्शन ये दो है इसका, ओके। नाउ मटेरियल्स यूज क्या है, देखो क्रश स्टोन, पत्थर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा मतलब कोर्स एग्रीगेट, फिलर मतलब साइन सैंड व क्ले, फाइन एग्रीगेट्स, ठीक है, मतलब कि स्टोन डस्ट होता है। सो ये मेन डिफरेंस है बेस कोर्स और सब बेस में, ओके। जैसे इस मटेरियल से बनता है ऐसे। अब हम बोले थे देयर आर टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन हाउ वी ले दिस बेस कोर्स। एक है वाटर बाउंड मैकाडम, दूसरा ओके। सी वाटर बाउंड मैकाडम नाम से तुमको पता चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमको कैसे इन लोग को एक साथ में मतलब वो करना है, मतलब इंटरलॉक करना है, एक साथ इनको बाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ वाटर। मतलब वाटर को हम लोग ऐसे यहाँ पे देखो तीनों मटेरियल्स डाल दिया, ठीक है। कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट एंड स्टोन डस्ट डाल के, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, बाइंड कैसे करेंगे, वी विल स्प्रिंकल सम वाटर। जैसे यहाँ पे देखो पानी छिड़कते छिड़कते आ रहा है, आने के बाद करेंगे देन वी विल कॉम्पैक्ट, ओके। और ये वाला क्या होता है, इट इज डायरेक्टली इन द साइट, मतलब साइट में जो होता है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट है वहीं पर ही तुमको ये करना पड़ेगा। बाहर से मटेरियल्स लाके या रेडीली जो मिक्स्ड है मटेरियल्स को लाके वहाँ पे प्लेस नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन द साइट वी विल ले प्लेस स्क्रीन, मतलब डालेंगे सब कुछ डाल के तुम्हारा कॉम्पैक्शन with the help of water वहां पे ही करेंगे साइड में, ओके। See voids fill with the screening and binding material with the assistance of water, ठीक है। अब ये फेज वाइज होता है, मतलब कि कुछ लेंथ तक किया फिर उसके बाद कुछ लेंथ तक, ये फेज वाइज देखो देखो ऐसा ये लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं और वहां से तुम्हारा कॉम्पैक्शन करते करते जा रहा है।
मतलब कितना टाइम से ये आउट हुआ था? तो 3-4 मिनट हो। अच्छा, ये वाला हुआ था, कहाँ तक हुआ था? यहाँ तक हुआ था? हाँ, हाँ मैम। कहाँ तक हुआ था ये वाला लास्ट? बेस कोर्स। ये वाला ना? ओके, ठीक है। तो मटेरियल्स ये सब पता है तुम लोग को, क्या क्या बोले थे बेस कोर्स में? नेचुरल सैंड, क्रश ग्रेवल, क्रश स्टोन, ठीक है। मतलब सैंड इज एक्टिंग लाइक योर फिलर, मतलब कि जो जो वॉइड्स है उसको फिल करेगा कौन? एग्रीगेट्स। अगर सिर्फ डाल के कंपैक्ट करोगे तो क्या होगा, वहां पे बहुत सारा वॉइड्स होगा, तो उसको फिल करना पड़ेगा, राइट? तो वॉइड्स अगर होगा तो वाटर भी जाएगा, उन लोग का मतलब स्ट्रेंथ भी ज्यादा अच्छा नहीं होगा। सो वी हैव टू फिल दोस वॉइड्स। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे नेचुरल सैंड, जिसको बोलते हैं स्क्रीनर या फिलर, ठीक है। क्रश ग्रेवल इज दैट स्टोन, क्या है, या स्टोन डस्ट, इट इज एक्टिंग लाइक अ बाइंडिंग मटेरियल, ठीक है। मतलब सबको इकट्ठा बाइंड करके रखेगा, मतलब ये फाइन एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट्स, सबको, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को देखो इधर लेकर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद स्क्रीनिंग मटेरियल डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग रोलर चपा दे रहे हैं, ओके। इसके ऊपर रोलर कंपैक्शन के लिए रोलर दे रहे हैं। सो इन दिस वे योर बेस कोर्स इज कंस्ट्रक्टेड, ओके। नाउ फंक्शन क्या था? फंक्शन हम बोले थे इट डिस्ट्रीब्यूट्स द लोड, मतलब कि जो भी टॉप सरफेस से लोड आ रहा है वो बॉटम उसके बीनीथ वाले लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब वो इट विल स्प्रेड द लोड, मतलब जो भी लोड आ रहा है उसको वाइडर एरिया में स्प्रेड कर देगा, जिससे कि नीचे की लेयर में थोड़ा कम प्रेशर या स्ट्रेस जनरेट हो, ओके। एंड दूसरा फंक्शन क्या था? टू इट कंट्रीब्यूट्स इन सबसरफेस ड्रेनेज। जैसे देखो ये वाला कैम्बर की वजह से तो ड्रेन होके जा ही रहा है आउटर ड्रेन में, और दूसरा क्या है कि अगर बाई चांस पानी अंदर गया भी तो क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस क्रॉस स्लोप इन द प्रोवाइडेड इन द बेस कोर्स, the water which has penetrated also drains out, okay, and it contribute to the subsurface drainage, मतलब कि नीचे की तरफ पानी गया ही नहीं because of these layers, okay। So देखो क्रश स्टोन, these are the materials used. Now based on the method of placing, how we are placing this WBM, how we are placing this base course. Base course mainly किस चीज से बनता है? थ्री, अच्छा, सब बेस और बेस में यही डिफरेंस है कि सब बेस कंप्राइजेस ऑफ ओनली टू मटेरियल। एक है तुम्हारा कोर्स एग्रीगेट, दूसरा है तुम्हारा फाइन एग्रीगेट, मतलब कोर्स एग्रीगेट एंड फिलर मटेरियल्स। वेयर एज बेस कोर्स इट इज कंप्राइजेस ऑफ थ्री मटेरियल्स। क्या है? कोर्स एग्रीगेट, फिलर मटेरियल विच इज फाइन एग्रीगेट एंड बाइंडिंग मटेरियल, ओके, विच इज स्टोन डस्ट, ओके। अब इन लोग को बाइंड करने के लिए हम लोग कैसे उसको कैसे प्लेस कर रहे हैं? इफ वी प्लेस दोस थिंग डायरेक्टली इन द साइट, मतलब कि साइट में जाके हम लोग इसको प्लेस कर रहे हैं, बाइंडिंग मटेरियल्स, फिलर मटेरियल सब देके कंपैक्शन कर रहे हैं, ओके, दैट इज योर WBM। एंड हियर सी वाटर टर्म इज दैट, मतलब कि यहाँ पे बाइंडिंग कंपैक्शन कैसे कर रहा है? पानी को डाल के, मतलब विद द हेल्प ऑफ वाटर दे आर बाइंडिंग दिस मटेरियल्स, ठीक है। तो पानी डाल के फिर कंपैक्शन देके इसको बाइंड करके एक सर्टेन थिकनेस ऑफ लेयर में प्रोवाइड कर दे रहा है, ओके। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वाटर बाउंड मैकाडम एंड इट इज कंस्ट्रक्टेड डायरेक्टली, मतलब साइट में जाके कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे मटेरियल्स डाल दिया है, ये स्क्रीनिंग मटेरियल्स डाल रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ से पानी छिड़क रहा है, फिर वहां से कंपैक्शन करते करते आ रहा है, ओके। सो ये साइट में हो रहा है। अब दूसरा कैसा हो सकता है? एनी आइडिया? वेट मिक्स मैकाडम, जिसको बोलते हैं WMM। ये तो WBM हो, हम बोले थे, ये बार बार बोल रहे हैं, इट इज डन इन द साइट इटसेल्फ। WMM में क्या होता है? ये वाला मिक्सचर क्या है, जो भी मिक्सचर है तुम्हारा, स्टोन डस्ट, एग्रीगेट, सैंड, ये सब को, हाँ, पानी, ये सब हम लोग पहले से, वी आर प्री मिक्सिंग, मतलब पहले से हम लोग किसी दूसरे जगह पर इसको मिक्स करके फिर हम लोग यहाँ पे लाके डंप कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ऑलरेडी ऑल दिस थिंग्स आर मिक्स्ड टुगेदर, देखो यहाँ पे सब कुछ मिक्स करके ये लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। मतलब सरफेस में ले नहीं कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, यहीं पर मिक्स कर दे रहा है सब माल मटेरियल्स को। फिर यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट दे आर लेइंग, मतलब उसको ले करते 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 जा रहे हैं। और साइड पीछे से क्या आ रहा है? पीछे से तुम्हारा ये वाला
कंपैक्शन देते देते जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड, इट इज ऑल्सो नोन एज प्री मिक्स्ड, मतलब कि ऑलरेडी मिक्स कर दिया। वेरएज बेस, इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारा साइड में हम लोग डाल रहे हैं मटेरियल, देखो ये सब मटेरियल साइड में है, डाल रहे हैं, फिर पानी छिड़क रहा है, फिर कंपैक्शन दे रहे हैं, ओके। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इन दिस केस इट इज बीन, वी आर यूजिंग द प्री मिक्स मटेरियल्स, ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेट मिक्स मेथड और प्री मिक्स भी बोल सकते हैं। पैचिंग प्लांट और कंक्रीट मिक्सिंग प्लांट की तरह यूज करते हैं यहाँ पे, फिर उसको ले करते हैं, देन वी आर ब्रिंगिंग इट टू द साइड फॉर ओवरलेइंग, उसको ओवरले कर देते हैं, फिर वी आर रोलिंग, मतलब उसके ऊपर कंपैक्शन चढ़ा दे रहे हैं रोलर यूज करके, ओके। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। अब सरफेस कोर्स क्या है, सरफेस कोर्स तुम्हारा बाइंडर और सरफेस वियरिंग कोर्स को मिलाकर टॉप कोर्स होता है, ओके। दिस इज एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल्स दैट वी आर यूजिंग, उसको हम लोग वेरी कर सकते हैं कि ये तुम्हारा फ्लेक्सिबल है, रिजिड है या सेमी रिजिड पेवमेंट है, ओके। तो मेन फंक्शन क्या है, ये फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, स्मूथनेस देता है। अगर हम लोग ये लेयर नहीं देखकर डायरेक्ट ये वाला लेयर दिखा देते तो क्या होता है, इट इज नॉट स्मूथ, ठीक है। तो यहाँ पे स्मूथ सरफेस नहीं है, तो इसको स्मूथनेस भी देता है। अगर ऐसे टाइप का रास्ते पे तुम गाड़ी चलाओगे तो आवाज आएगा, तो नॉइस को भी इसको रिड्यूस करता है, ठीक है। एंड ड्रेनेज को तो करता ही है, क्योंकि टॉप लेयर में वी आर यूजिंग एंटी, क्या बोलते हैं, वाटर प्रिवेंटिंग एजेंट्स, मतलब वाटर प्रिवेंटिंग मटेरियल्स या वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे बिटुमीन, ये सब यूज करते हैं, जो कि वाटर प्रूफ करता है टॉप लेयर्स को, ठीक है, जिससे नीचे की तरफ पानी जाए ही नहीं, ओके। सो एज आई सेड, डिपेंडिंग अपॉन द लेयर्स, देखो सबग्रेड, ड्रेनेज, सबबेस, बेस, सरफेस कोर्स होता है, और इसका भी सबग्रेड, ड्रेनेज, सबबेस और सरफेस कोर्स होता है, लेकिन टॉप सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है ये फ्लेक्सिबल है या रिजिड है। और दूसरा टाइप का आ सकता है तुम्हारा सेमी रिजिड कंपोजिट, दिस आई विल टीच इन डिटेल्स, ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर। अब देखो सबसे पहले क्या आएगा, नेचुरल सबग्रेड या फाउंडेशन, जो नेचुरली प्रोवाइड करता है। तो इसका थिकनेस वी नीड नॉट टू डिजाइन, मतलब ये इन्फिनिटी है। अब तुम अर्थ, ये तो अर्थ सरफेस, अर्थ को क्या बोलोगे, इतना थिकनेस है, नहीं, सो इट इज इन्फिनिटी, मतलब नीचे की तरफ जाएगा, ये पूरा नेचुरली है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, प्रिपेयर्ड सबग्रेड, ठीक है। प्रिपेयर्ड मतलब हम लोग कुछ लेयर्स लेकर रखेंगे वहां पे, मतलब नेचुरल सॉइल को लेकर डंप करेंगे, फिर कंपैक्शन देंगे। इसका थिकनेस ये है मैक्सिमम 300, मिनिमम 150 mm, ठीक है। ये सबग्रेड हुआ, उसके ऊपर बोले थे सब बेस, थिकनेस इट इज गिवन, ठीक है, रेंज है यहाँ से यहाँ तक ही होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है बेस कोर्स, ठीक है। अब देखो सब बेस किस चीज से बनता है, सैंड व ग्रेनुलर सब बेस, जो हम बोले थे बेस कोर्स बनता है ये जो WBM, WMM ये सब से, ठीक है। अब बेस कोर्स के ऊपर एक हम लेयर देते हैं, जिसको बोलते हैं प्राइम कोट, ऑल दीज आर वाटरप्रूफ टाइप का कोट है, ठीक है। एक लेयर देते हैं, कोटिंग देते हैं, जिसको बोलते हैं प्राइम कोट। फिर उसके ऊपर बाइंडर कोर्स देते हैं, बाइंडर कोर्स के ऊपर एक कोट देते हैं, दिस इज कॉल्ड टैक कोट, ठीक है। फिर सरफेस कोर्स देते हैं, एकदम सरफेस कोर्स के एकदम ऊपर में जो और एक लेयर हम, मतलब क्या बोलते हैं, एक स्प्रे करते हैं, एक लेयर की तरह स्प्रे कर देते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कोटिंग करना, सील कोट। सो प्राइम कोट सब बेस, आई मीन बेस और बाइंडर के बीच में रहता है, टैग कोट बाइंडर और सरफेस के बीच में रहता है, और सील कोट एकदम टॉप में रहता है। तो दिस आर द थिकनेस, ठीक है, इतना वेरी करता है फॉर फ्लेक्सिबल पेवमेंट। अब देखो ये सब क्या है, प्राइम कोट क्या है, इट इज बेस्ड, हम बोले थे इट इज अप्लाइड ऑन द बेस, मतलब बेस कोर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, इट इज एक्टिंग लाइक अ सीलर, ठीक है, जिससे कि डैम्पनेस को प्रिवेंट कर सके, ओके। टैग कोट क्या है, ये वाला इसके ऊपर करते हैं, एग्जिस्टिंग सरफेस के ऊपर करते हैं, मतलब कि बाइंडर कोर्स के ऊपर करते हैं, ठीक है। ये क्या इंश्योर करता है, इट इंश्योर बॉन्डिंग, मतलब ये जो दो अलग अलग लेयर है इसको बॉन्ड करने में ये हेल्प करता है। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर तो थोड़ा ये इतना दूर तक हम कर लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा है सील कोट, मतलब कि ये जो भी वॉइड्स अगर रहेगा उसको हम सील कर दे रहे हैं यूजिंग द सील कोट, ओके, स्टोन चिप्स ये सब फिलिंग टाइप का करके, एंड इट इज एक्टिंग लाइक अ वाटर टाइट एजेंट आल्सो, मतलब कि पानी जैसे नीचे ना जाए, ओके। अब जैसे इसमें भी सेम है, ये वाला सेम रहेगा, कंपैक्टेड सबग्रेड भी सेम रहेगा, सब बेस भी सेम रहेगा, बेस भी सेम रहेगा, सिर्फ तुम्हारा वैरी क्या करेगा, टॉप लेयर जो कि तुम्हारा क्या है, इट इज कंप्राइजिंग ऑफ, वहाँ पे था बाइंडर कोर्स, सरफेस कोर्स, तो यहाँ पे था लेवलिंग कोर्स और सरफेस कोर्स। सरफेस कोर्स में हम लोग क्या देंगे, देखो CC स्लैब, दैट इज सीमेंट कंक्रीट स्लैब, ओके।
वही डिफरेंस था, वहाँ पे बिटुमिनस कंक्रीट था, यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट था। ऐसे होता है तुम्हारा रिजिड पेवमेंट। देखो स्लैब्स के हिसाब में डिजाइन कर रहे हैं। ओके देखो पूरा कास्टिंग वास्टिंग ऐसे है, और बीच बीच में ये सब क्या है, वी विल डिस्कस इन लेटर जब हम लोग करेंगे। तो ऐसे स्लैब के हिसाब से अल्टीमेटली इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है, जॉइंट्स यहाँ पे होता है। तो ये दोनों कंपोजिशन है, देखो दोनों ये तीनों सेम है, यहाँ पे सेम है, सिर्फ यहाँ पे वैरी करेगा। ठीक है, एक में डीबीएम रहेगा, एक में पीसीसी रहेगा, प्लेन सीमेंट कंक्रीट रहेगा तुम्हारा इस वाले में, डीबीएम या डेंस बिटुमिन मैकेडेम इसमें रहेगा, और इसका टॉप सरफेस में बिटुमिन रहेगा, इसका टॉप सरफेस में कंक्रीट रहेगा। सो दिस इज द डिफरेंस। ओके, आज के लिए इतना ही है। सॉरी थोड़ा लेट हो गया, हो गया No. बीच में कट गया था। हाँ मैम। ओके देन, थैंक यू। Thank you, ma'am. अच्छा Thank you. ओके, अटेंडेंस ले। अटेंडेंस वहाँ पे जाके दे सकते हो हम। ठीक है मैम। अच्छा रुको 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 रुको, वेट वेट वेट, यहीं पर ही हो जाएगा। फोन नहीं आया। ठीक है ठीक है, जा सकते तुम लोग। थैंक यू मैम। थैंक यू।